जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, नौकरी चोर, गद्दी छोड़, नौकरी चोर, गद्दी छोड़, स्टेट चोर, गद्दी छोड़, स्टेट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर। गद्दी छोड़। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ਉਹ ਜੂਤ ਕੰਨੇ ਚਲਗ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਤੀਜਾ ਘਰ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਐਕਸਮੈਨ, ਕਿਆ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ, ਸਭ ਚਿੱਟੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਪਈ ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਛੜਾਇਆ ਦਿਲ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਚਿੱਟੇ ਖਾਣਾ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹ ਬਚੇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹ ਕੀ ਬਚਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਘਰ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦਾ ਫੌਜੀ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਘਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਿਰਦਾ ਲਾਲ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੀ ਔਰ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਛ ਮਿਲੀ। ਟੀਚਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੌਕਰੀ ਆਏ ਕਰਨੇ ਕਿ ਨੇ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਯੂਥ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਯਾਰ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਗਲਤ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਰਮੀ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰ ਆਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਚਲਾ ਦੀ ਤੇ ਫੌਜ ਕਿੰਨੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ। ਨਵੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਈ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜੱਬਲਪੁਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਦੀ, ਕੋਈ BRO ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਦੀ, ਕੋਈ CRP ਨਹੀਂ, ਕੋਈ IRP ਨਹੀਂ, ਕੋਈ SSB ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ CISF ਨਹੀਂ ਔਰ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੋਢਾ ਖੰਨੇ ਟਾਂਡਾ ਲੱਗੀ ਦੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਦੀ। ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਈਏ ਤੇ ਆਦੇ ਡਾਕ ਦੇਈਏ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਨੂੰਹ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਖਲੋਣਾ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਖਲੋਈਏ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖਣਾ, ਪੂਰਾ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ 70-75 ਸਾਲ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਪਰ ਇਹ ਲੁੱਕ ਪਾ ਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਯਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆਖਦੇ ਯਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਈ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲੀ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ। ਜਿਸਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆ। ਅੱਜ ਨੀਲਮ, गोल्ड, अशरफियाँ, हीरे कुत्थे है पहाड़े च। इनकी क्या स्कीम है? रोड जा रहा है, उस कहते नहीं इधर से नहीं जाएगा, इस रोड को आपको घुमाओ, घुमा के इस पहाड़ को काटो। पहाड़ को काट के साइड पे जाला लगा दिया ताकि मिट्टी वापस ना आए, इधर की मिट्टी इधर रहे। जी रमेश जी, आज की बैठक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज की बैठक एक रूटीन बैठक थी जो कि बड़े देर से हमारे जो बुज़ुर्ग नेता थे डोगरा साहब उन्होंने शुरू की थी। उसी कड़ी में आज की मीटिंग भी थी। आज की मीटिंग में हमने बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो डिस्कस किए हैं, चाहे यूथ से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे हमारे स्टेट की बात हो, स्टेटहुड, और चाहे बांगचुक की बात हो, या मलिक साहब को जो PSA लगाया गया नाजायज तौर पे, गैर संवैधानिक तौर पे, उनके प्रति विरोध जताया है। और एक तरफ जब हमारी सरकार थी यहाँ पे, तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर सरकारी नौकरी देने में हिंदुस्तान में नंबर 1 थी। तो मेरी
युवाओं से जो अपील है कि इस बात पर आपको गहन शोध करना चाहिए कि कौन सी सरकार चोर है और कौन सी सरकार ईमानदार है। कि जब हमारी सरकार थी तो यहां पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट रेट जो था जम्मू कश्मीर में वो था, लेकिन आज हम बेरोजगारी में पूरे भारत में नंबर 1 में पहुंच गए। जब हमारी सरकार थी, जिसको ये बेईमान सरकार बोलते हैं या चोर सरकार बोलते थे, तो ये 120 रुपए या 80 रुपए बिजली का किराया था। आज 4000, 6000, 7000 किराया आ रहा है। तो फिर सोचना पड़ेगा कि चोर कौन है और महाचोर कौन है। जब हमारी सरकार थी, सिलेंडर था जो था वो 400 रुपए का मिलता था, अभी 1200 या 1100 का मिल रहा है। ये सोचना पड़ेगा लोगों को, गृहिणियों को सोचना पड़ेगा। दूसरी बात जो है मेरे दिमाग में एक आती है कि किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान है, आम आदमी परेशान है, व्यापारी परेशान है, इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है, फिर इनको वोट कौन दे रहा है? और ये लोगों की बात सुन क्यों नहीं रहे? एक ही बात है जो राहुल गांधी जी हमारे उठा रहे हैं, वो बात है वोट चोरी। चाहे ऑनलाइन वोट डिलीट करने की बात हो, चाहे गलत तरीके से वोट बनाने की बात हो। पहले इन्होंने वोट गलत तरीके से बढ़ाए, अभी जो डिलीट कर रहे हैं। आपने जैसे देखा बिहार में, हरियाणा में वोट चोरी हुई, बिहार में हुई, मध्य प्रदेश में हुई, महाराष्ट्र में हुई और बहुत सारी स्टेट्स में इन्होंने पंगा किया है। और मुझे पूरा यकीन है कि जहां पर अभी जो इलेक्शन हुई एमएलए की, इसमें भी हेराफेरी हुई है। यहां तक भी आंच इसकी आएगी। जो जांच राहुल गांधी ने बिल्कुल एक एक धागा खोल के रख दिया, लेकिन जो हमारे इलेक्शन कमीशन है वो अपने पद का निर्वाह जो है या संविधान का जो एक प्रक्रिया को पालन जो करना होता वो नहीं कर पा रहे, और एक पार्टी के साथ खड़े होकर के बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो अपनी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उन्होंने 1-2 बार मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर्स हैं उनकी अवहेलना भी की है। इसलिए हम सभी मुद्दों का आज हमने डिस्कशन की है और निश्चित तौर पे आगे भी मीटिंग्स में ये मुद्दे उठाए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी राकेश जी, आज आपने यहाँ पर कांग्रेस की बैठक की है, तो क्या मुद्दे थे जिनके ऊपर आज चर्चा हुई है? तो क्या आप आगे क्या रणनीति लेके चल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने भी टाइम निकाला हमारे लोगों के लिए। और साथ में हमारी मीटिंग मंथली 5 तारीख को होती है, जो कांग्रेस की मीटिंग थी। ये हमारे गिरधर लाल डोगरा जी ने पहले जो चलाई मीटिंग, उसके बाद हमारे चौधरी साहब जो थे गिरधर लाल जी, वो मीटिंग करते रहे। और 5 तारीख को हर महीने हमारी मीटिंग होती है और अलग अलग जगह पे होती है। और आज हमारी मीटिंग जो हमारे एक्स एमएलए गिरधर लाल चौधरी जी हैं, आज उनके घर पे हो रही है। तो काफ़ी संख्या में हमारे लोग भी आए हैं, काफ़ी लोग जो सीनियर हैं हमारे, जो कांग्रेस में सीनियर पर्सन है, सभी लोग जहाँ पे आए हैं। और बहुत चर्चा हुई है। चर्चा सबसे पहले जो बाढ़ से प्रभावित लोग हुए हैं, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उस पर भी चर्चा हुई है। और जो एग्रीकल्चर का मुद्दा है कि कितनी फसलें हमारी ख़राब हो चुकी हैं। कुछ फसलें हमारी बारिश के कारण ख़राब हुई और कुछ फसलें हमारी जो तूफान था उसके कारण ख़राब हुई। जितनी भी हमारी बासमती 11-21 सारी ख़त्म हो चुकी है। तो काफ़ी मुद्दे थे जिन पे चर्चा हुई है। कितना नशा हमारे इलाके में जो चिट्टा है वो इतना नशा बढ़ चुका है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर भी चर्चा हुई है। क्योंकि आए दिन में हम देखते हैं कि चौकी थानों में रोज़ के 7-8 लड़के जो हमारा यूथ है वो चिट्टे का शिकार हो रहा है। और कहीं ना कहीं चिट्टे वाले को शिकार जो उनको पकड़ के लाया जा रहा है। पिछले दिनों ड्रोन पकड़ा गया था बॉर्डर पे, जो चिट्टा लेके आया था। मैं सरकारों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर ड्रोन चिट्टा लेके आ रहे हैं और बॉर्डर से आ रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, चिट्टा आपसे रुक नहीं रहा है, तो आप आतंकवाद को कैसे रोकोगे? आप जो दुश्मन हमारा है उसको कैसे रोकोगे? बॉर्डर आप कैसे मजबूत करोगे? आज हमारा जो यूथ है टोटल खत्म हो चुका है। थोड़े दिन पहले हमारे ही पंचायत में एक लड़का खत्म हुआ है, जो रात को 12 बजे डोज ले रहा था। डोज ओवर होने के कारण वो खत्म हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चर्चा करने से ही कुछ नहीं होता। जब तक पुलिस डिपार्टमेंट, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन पूरी सख्ती से काम ना करे। ये सप्लायर कौन है? ये चिट्टा हरियाणा से कैसे आ रहा है, पंजाब से कैसे आ रहा है, पाकिस्तान से कैसे आ रहा है, इसके कौन आगे सप्लायर हैं? कितना पैसा लेके ये कर रहे हैं? 1 ग्राम जो है वो 3000 का मिलता है। जब 1 ग्राम 3000 का मिलता है, जिस बच्चे को चिट्टा लग जाएगा वो 3000 कहाँ से निकालेगा? वो क्या करेगा? अपने घर के जो गहने हैं, जो गोल्ड पड़ा हुआ है, उसको बेच देगा, माता पिता को मार देगा, बहन भाई को मार देगा, अपना वो नशा पूरा करने के लिए। इसलिए सरकारों को चाहिए रोजगार देना। नशा अगर ख़त्म करना है उसका एक ही तरीका है। अगर आप हमारे बच्चों को रोजगार देते हो, अगर आप हमारे बच्चों को नौकरियां देते हो,
2014 के बाद कितनी नौकरियां आपने बेल्ट फोर्स को दी, कितने लड़के हमारे आर्मी में गए, आज आर्मी कहाँ है और कितनी आर्मी आज हमारी खाली हो चुकी है। जितने हमारे एक्समैन जो थे, जो रिटायर्ड पर्सन थे, वो चले गए हैं। न्यू आपने नौकरियां कितनी की हैं, न्यू आपने अपॉइंटमेंट कितने बंदे किए हैं। आज हमारी फौज खाली हो चुकी है। जो आपकी 4 साल वाली अग्निवीर थी, वो भी आपकी जो स्कीम थी वो ख़त्म होगी, वो भी स्कीम आपकी आज नहीं चली है। इसलिए आप रोज़गार देना शुरू करें। जैसे ही बच्चे को होश आती है, जब बच्चा जुवानी में आता है तो बच्चे को नौकरी मिल जाती है। तो बच्चे को 9 महीने की ट्रेनिंग में बच्चा जो है, अगर वो गलत भी कोई काम करता है तो वो बच्चा संभल जाता है, सीख जाता है। अगर गांव के गांव खाली हो गए, शहर के शहर खाली हो गए, अगर हमारा जूथ खत्म हो गया तो जो बुजुर्ग बच्चे हैं वो देश को संभाल नहीं सकते, वो बॉर्डर को संभाल नहीं सकते, वो अपनी स्टेट को नहीं संभाल सकते। इसलिए ये मुद्दा बहुत गंभीर है। इसको अगर लाइटली में लेंगे तो इलाका पूरा खत्म हो जाएगा। यही बच्चे आपस में लड़के मरेंगे, ये दुश्मन को नहीं मारेंगे, ना दुश्मन से लड़ाई करेंगे। इनकी जो आपस में रिश्तेदारी हैं, आपस में जो भाईचारा है, ये खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हमें नशे को कंट्रोल में करना पड़ेगा, चिट्टे को बंद करना पड़ेगा। उसको खत्म करने का एक ही तरीका है, आप जितनी मर्जी फोर्स लगा लें, जब तक हमारे बच्चे कामयाब नहीं होंगे, जब तक बच्चे हमारे नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक ये नशा खत्म नहीं होगा। अब रही बात जितना भी लोगों का नुकसान हुआ है फसल का, मैं सरकार के आगे कहना चाहता हूँ, चाहे भाई उमर साहब की सरकार हो, चाहे सेंटर की सरकार हो, हमारे लोगों की जो फसल खराब हुई है उनको मुआवजा दिया जाए। और जिन लोगों के मकान बारिश में गिर गए हैं उन पे जो आप मुआवजा दे रहे हो, उस मुआवजे से उस भाई का एक कमरा भी नहीं बनता है। कम से कम एस्टिमेट बना के, जेई से इंजीनियर से एस्टिमेट बने कि एक जिसका मकान गिर गया है उस मकान में 5 लाख लगा था, 10 लगा था, कम से कम उसको एक मकान जो बनाना उसको 5 लाख रुपया कम से कम दिया जाए, ताकि वो उसको राहत मिले। साथ में जिन लोगों की ज़मीन बह गई है, बहुत सारे लोगों की ज़मीन जहाँ एग्रीकल्चर फसल लगती थी आज वो बंजर हो गई है, आज उसमें पत्थर रेत आ गया है। उस फसल पे ही उसको मुआवजा मिलना चाहिए ताकि वो दोबारा अपनी फसल तैयार कर सके, दोबारा वो अपनी ज़मीन तैयार कर सके और वो खुश हो सके। जिम्मेदार जब वो जाता है खेत में तो रोता है, खून के आंसू रोता है कि मेरी आज ज़मीन थी, कई लोगों ने कमाद लगाया हुआ था और 5-5 फुट में मिट्टी आ गई है, पत्थर आ गया, सारा ही फसल ख़राब हो चुकी है। तो मैं सरकार के आगे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि लोगों का सोचें, गरीब लोगों का सोचें और ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ करवाएं। कम से कम हमारा जूथ जो है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सके, उसका बेस बन सके, उसको रोज़गार मिल सके, ताकि जो इलाके में गुंडागर्दी मची है, चिट्टे का कारोबार हो रहा है, वो ख़त्म हो सके। और आज की मीटिंग हमारी बहुत सफल रही। मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सभी लोग जहाँ पे आए मीटिंग, और हमारी नेक्स्ट मीटिंग अभी दूसरे एरिया में है, अगली शेरपुर में होगी। मैं सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप अगले 5 तारीख को शेरपुर में पहुँचें, वहाँ हमारी चर्चा होगी। जहाँ जहाँ कोई नुकसान हो रहा है, चाहे वो बिजली का है चाहे पानी का है, वो बात करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के आगे भी रखेंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी ड्यूटी की, उसके आगे भी कोई बात रखनी पड़ी तो वहाँ भी जाएंगे। हमें लोगों को बचाना है और लोगों के हित के लिए लड़ना है। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।